everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 22nd August 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देखेंगे, it is with regard to the Khelo India Sports Festival. Now we see the water sports, जो पानी में जो खेल खेला जाएगा, this is with regard to जैसे नेशनल स्पोर्ट्स खेलते हैं हम, वैसे ही हम देख रहे हैं. So recently हम देखते हैं कि we have seen Khelo India Sports that happened in the month of May. इसका ही अगर एक्सटेंशन के बात करें, this happened as a part of water sports, यानी पानी का sports. Now what are water sports that are played in water, like for example rowing, canoeing, kayaking, water skiing, shikara boat spring, a dragon boat race. These are types of water sports. तो ये कहाँ पे हुआ? This is in the Dal Lake. Now Dal Lake is in Srinagar, okay, Jammu Kashmir, and हम देखते हैं this will be held from which date to which date? 21st August से लेके 23rd August 2025. 400 participants यहाँ पे होंगे, the maximum coming from Madhya Pradesh. Correct? Now this is the second Khelo India event that we see in Jammu Kashmir. तो इसके पहले कौन सा इवेंट हुआ था जम्मू कश्मीर में? The Winter Games. Now the Winter Games happened in Gulmarg and this is establishing the region as India's winter sports hub. तो ये इसको recognize कर रहा है as the winter sports hub. Now let's understand about the Khelo India Water Sports Festival 2025 के बारे में. कौन इसको organize करता है, ये सब हम जानेंगे. So here we see the Sports Authority of India, ये इसको ऑर्गेनाइज करते हैं along with the Jammu Kashmir Sports Council. Clear? Now this is under the government's initiative, Khelo Bharat initiative. Okay. Now further, if you see the objectives given in this is to expand the grassroots sports. This was to generate local employment, upgrade infrastructure. हमको sports को push करना है because also we see we want to host the Olympic Games, right, in 2036. तो 2036 में we want to be like pioneers in sports. We want to excel in this particular sector. तो इसके लिए हम national sports को ज़्यादा यहाँ पे encourage कर रहे हैं, and especially grassroots sports at the lower level पे. Now this event that we see is the first consolidated open age championship. यहाँ पे 10 rowing events, kayaking events और सब होंगे. यहाँ पे We also see India's first jury member in Olympics in 2025. कौन होंगे ये? This is Bilkis Mir. So note down this information. Bilkis Mir is the first jury event, जो jury member होते हैं ना Olympics में, तो that was in 2025 Bilkis Mir. Okay. Now Khelo India के बारे में देखते हैं, ये प्रोग्राम क्या है. So this particular winter the water sports event जो था, ये खेलो भारत इनिशिएटिव के अंदर था, खेलो इंडिया इनिशिएटिव के अंदर. व्हाट इज खेलो इंडिया इनिशिएटिव? ये ऑर्गेनाइज हुआ था 2017 में. ठीक है. Now 2017 में we see that it began starting as school games. Okay, so बच्चों के लिए स्कूल गेम्स 2018 में. Then we saw it was joined by the Indian Olympics Association. Indian Olympic Association ने ज्वाइन किया था 2018 में, और उन्होंने फिर नेम ही चेंज किया टू खेलो इंडिया यूथ गेम्स. ठीक है. एंड द फर्स्ट सच एडिशन हैपेंड इन पुणे इन 2019. We also saw इस साल the beach games, Khelo India beach games took place in Diu in May 2025. Now you have to tell me in the comment section the 7th Khelo India Youth Games 2025 ये कहाँ पे हुआ? This also happened in the month of May. तो ये कौन से state of India में इन्होंने organize किया था? The 7th Khelo India Youth Games. So you can expect such questions also in your exam. Let's now proceed to the next article. हमारा next article है is with regard to the National Tiger Conservation Authority. Now this has headline देखते हैं, it is limiting the tiger corridor to minimal requirement and multiple projects will benefit from this. What do you understand by this? Let us understand everything about it. We'll also understand कि NTCA होता क्या है. तो NTCA ने अभी क्या किया है? इन्होंने restrict किया है tiger corridors. Now tiger corridors is like the link between two forest regions. Okay, two forest regions या two reserve forest को जो connect करता है, राइट, उसको बोलते हैं टाइगर कॉरिडोर. तो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है टू हाउ मच? टू 32 लीस्ट कॉस्ट पाथवे.
32 लीस्ट कॉस्ट पाथवे। नाउ व्हाट आर टाइगर कॉरिडोर्स के बारे में यहाँ पे दिया है, दे आर द नेचुरल लिंकेजेस बिटवीन टाइगर हैबिटेट्स, यानी कि दो टाइगर रिजर्व्स के बीच में जो लिंक है इसको बोलते हैं टाइगर कॉरिडोर। तो ये मूवमेंट अलाउ करता है अलोंग फॉरेस्ट, दे ऑल्सो मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी बिकॉज यहाँ पे क्या है, दे आर ब्रीडिंग विद द अदर टाइगर्स एज वेल, राइट। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी भी मेंटेन करता है सो दैट दे डोंट ओनली ब्रीड अमंग देमसेल्व्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस विल ऑल्सो reduce human wildlife conflict because ये जो बहुत secured है, they allow the tigers to move from one place to another, which will also not hamper the human interactions that we can talk about. Further, this will also ensure long-term survival of tiger population because we can easily move. And under the Wildlife Protection Act of 1972, यहाँ पे हम देखते हैं कि तुमको यहाँ पे projects बनाना allowed नहीं है, तुमको यहाँ पे अगर बनाना भी है तो तुमको एक special clearance चाहिए होता है from the National Board for Wildlife. Can you tell me who is the chair of the National Board for Wildlife? Okay, ये आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। So according to the Wildlife Protection Act of 1972, if at all you want to create any projects, any industries, तुमको कुछ सेटअप करना है near the tiger corridors, you need to have permission from this particular board called the National Board for Wildlife. Now we will see what is the change here, मतलब इससे क्या है, इससे क्या हुआ है। So NTCA ने जुलाई में यानी कि पिछले महीने ये एक एफिडेविट दिया था to the Bombay High Court saying that you have to refer to all of this when you are talking about tiger corridors. अगर तुम लीस्ट कॉस्ट पाथवे की बात कर रहे हो, जो टाइगर कॉरिडोर्स की बात कर रहे हो, you need to take data, you need to study the data and only then take an issue. So कौन से तुमको डेटा लेना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड एरियाज कितने हैं, लीस्ट कॉस्ट पाथवे that is of the report 2014, conservation plans, wildlife institute of India, all India tiger estimation data, all this data you need to go through, monitor करके ही तुम यहाँ पे डेटा दे सकते हो। Now in the recent August 2025 यानी अभी का जो NTCA ने क्लैरिफिकेशन दिया है, इन्होंने बस the causeway, least causeway path दिया है, ये रिफर किया है, then they also refer to tiger conservation this one, the plans, and excluded two things. They have excluded these two, ये follow नहीं किया। So don't you think this is like going away from the stand that they said in the last month? That is the issue here. Okay, so July 2025 के study के according अगर हम ये plan follow करते हैं, we see that 192 corridors होते हैं, 192. Okay, now because they are excluding and everything, how much is the corridor now? The corridors are only 32. Okay, so that is the problem here. So that is why the article is given. So this has underestimated the tiger movement patterns and risk habitat fragmentation. ये issues हो सकता है, ये article कहता है। Let's now also understand about the National Tiger Conservation Authority. तो ये एक statutory body है, यानी कि एक law से बना है, एक act से बना है। कौन से act से बना है? This is created under the Wildlife Protection Act of 1972. ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड दिस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2006। ठीक है। नाउ व्हाट इज द वर्क और फंक्शन ऑफ द एनटीसीए? एनटीसीए का काम है टू प्रोवाइड अथॉरिटी टू द प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, सो इंप्लीमेंट करना प्रोजेक्ट टाइगर को, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना इन केस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन रिलेशन टू टाइगर रिजर्व्स, राइट, बिकॉज ये टाइगर रिजर्व्स हर स्टेट में है। सो अगेन टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेबिलिटी, टू क्रिएट एन ओवरसाइट बाय द पार्लियामेंट एज वेल एज टू एड्रेस द लाइवलीहुड इंटरेस्ट स्पेशली फॉर द पीपल दैट आर लिविंग अराउंड द टाइगर रिजर्व। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं एनटीसीए इज ऑल्सो एन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी फॉर नॉट जस्ट टाइगर प्रोजेक्ट, इट इज ऑल्सो सिमिलरली फॉर द चीता प्रोजेक्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, चीता प्रोजेक्ट के लिए भी एनटीसीए इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। एनटीसीए का कॉम्पोजिशन कौन है, यानी कि उसके चेयर कौन है? द चेयर इज द Minister of Environment, Forest and Climate Change, which is currently Bhupendra Yadav. Then Minister of State for MOEFS FCC is the Vice Chairperson, as well as 3 member Parliament के होते हैं, Secretary होते हैं, and other such members. So these are the composition of the NTCA. Proceeding to the next article. अगला article है Axiom 4 mission के बारे में. Now Axiom 4 mission, we have seen that
ऑलरेडी बहुत इसके बारे डिस्कस किया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट एक्सियोम 4 मिशन एनी मोर. बट व्हाट इज टुडेज आर्टिकल टॉकिंग अबाउट? आर्टिकल कह रहा है कि एक 400 पेज का डॉक्यूमेंट बना है, ओके, एंड दिस टॉक्स अबाउट अ डिटेल्ड एक्सपीरियंस ऑफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, okay, of the Axiom mission. उनका जो ट्रेनिंग है, how did he feel, everything is mentioned in this 4,000 page document. Okay, it covers launch process, docking, micro gravity effects, return journey, उन्होंने क्या मिस किया, इंडियन फूड मिस किया, उन्होंने कैसे देखा, all of his experience of the ISS is mentioned to us in this particular document. So this is also telling us about the Axiom 4 mission. And यहाँ पे हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं, जो कौन है, इनका नाम क्या है, वी नारायणन, ये कहते हैं कि इससे हमारे जो फ्यूचर मिशंस है, दिस विल आल्सो, वी विल बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, वी विल बेनिफिट फ्रॉम द फ्यूचर मिशन, स्पेशली इन द गगनयान प्रोग्राम. Now, यहाँ पे याद रखना है आपको, apart from group captain शुभांशु शुक्ला, there was also another backup in the Axiom mission. So Axiom mission के लिए backup थे प्रशांत नायर, ठीक है, प्रशांत नायर. तो along with शुभांशु शुक्ला, he also underwent the training for the same, कि अगर मान लो शुभांशु शुक्ला couldn't make it, then प्रशांत नायर would have been sent. And प्रशांत नायर is also part of the Gaganyaan program along with Shubhanshu Shukla, but this time Shubhanshu Shukla is the backup for the Gaganyaan program. ठीक है, so we see Prashant Nair, there's also Ajit, Angad Pratap and Ajit Nair. These are also part of this particular program. ठीक है, so यहाँ पे आपको याद रखना है, facts हमने already cover किया है. I'm going to ask you 2 questions. Recently Shubhanshu Shukla met with PM Modi. What gift did he bring for him? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. I've already covered this in my last video. Apart from that, tell me the mission dates of the Axiom mission. Axiom mission कितने दिन से कितने दिन तक था? I also tell you why I'm asking this question, because it is so कि इसरो ने we know that Axiom mission 2-3 बार क्या हुआ, extend हुआ. It was not on the date that it was decided. So जब वो extend होने का कारण हमने देखा भी था कि there was with regard to the oxygen का एक leak था, all of that we saw. Now it is said कि ISRO had already told them कि ऐसा कुछ leak है, but उन्होंने careless किया था. That is in the SpaceX mission. They did not pay attention. They did not pay heed to it. But finally, when ISRO was insisting कि no, you have to look, then they actually delayed the flight. So all of this was also mentioned in today's article, where of course from the point of view exam, we have some facts that are already covered for you. Let's proceed to the next article then. The next article is with regard to why environmentalists have criticized Haryana's government, Haryana government's definition of forest. तो ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है, तो जल्दी से पहले देखते हैं what do you mean by a forest? Okay, so when you see the Forest Conservation Act of 1980, FCA कहते हैं, it is saying कि अगर तुम डी रिजर्व या डिवाइड करते हो फॉरेस्ट को, यू नीड टू आस्क द अप्रूवल ऑफ समबडी. हु इज दैट? विद द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूवल. Our next article is with regard to why environmentalists have criticized Haryana government's definition of forest. Now इसके लिए let us understand about forest. Let's understand a little background. Okay, now what are the different laws, acts talking about it? तो पहला एक्ट है Forest Conservation Act of 1980. According to this act, अगर तुम डी रिजर्व करते हो, अगर तुम डिवाइड करते हो फॉरेस्ट को, तुम ये गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते. ओके, इफ यू आर डी रिजर्विंग अ फॉरेस्ट और इफ यू आर creating a division in the forest, you have to take the approval of the government. Now Godavarman case. Now Godavarman case important है because इसने define किया था what do you mean by forest. So in this Supreme Court ने define किया था कि it is in the dictionary sense that जो forest के characteristics है, okay, it is regardless कि what is the ownership or what is, depending on private owned है, government owned है, does not matter, या किसी ने notify किया, no, does not matter, वो फॉरेस्ट में कवर होता है. सो एनी एरिया विद फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, रिगार्डलेस कि वो गवर्नमेंट ओन्ड है, प्राइवेट ओन्ड है, कुछ भी हो, वो फॉरेस्ट के डेफिनेशन में आता है ना. इसको अमेंड किया था बाय द 2023 FCA अमेंडमेंट था, ये एक्ट को अमेंड किया था
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को, और उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ओनली इफ इट इज गवर्नमेंट रिकॉर्डेड और नोटिफाइड, ओनली दैट विल बी डिफाइंड एज फॉरेस्ट. बट दिस ऑल्सो वॉज चैलेंज्ड अंडर द अशोक कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे एन एनजीओ एंड रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर्स ने पिटिशन किया कि सेइंग कि जो हम देखते हैं द गोदवर्मन केस में जो लिखा है वही होगा कि रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप दिस विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट. सो व्हाट इज फॉरेस्ट, ये कौन से जजमेंट से हमको मिला है? बॉटम लाइन, इट इज गोदवर्मन केस ऑफ 1996. ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव्स इन 2025. नाउ दिस इज द रीसेंट डायरेक्टिव. इट इज सेइंग कि ऑल स्टेट्स एंड यूटीज इनको डिफाइन करना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय अ फॉरेस्ट. Okay, so further they should also form expert committees within 1 month, okay, of this judgment. They need to also create expert committees and geographical information system based mapping. Okay, तो यहाँ पे information लेके mapping करके they should also see what is the forest area that we're talking about. So mapping करना चाहिए, and this was as per the Lafarge-Umam mining guidelines of 2011. ये बताया था कि you have to see what is the eco sensitive zone, what is the district wide forest, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, ये सब गाइडलाइंस में बताया था. गाइडलाइंस का नाम है Lafarge-Umam माइनिंग गाइडलाइन. फर्दर अकाउंटेबिलिटी सेट की थी टू द चीफ सेक्रेटरीज एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि दे विल बी लायबल, अगर मान लो तुमने कंप्लाई नहीं किया एज पर द डायरेक्टिव्स, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? द चीफ सेक्रेटरीज. Now let's understand हरियाणा ने क्या किया, because according to them they have to define the forest. तो इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया एस्टैब्लिश किया है कि if 5 हेक्टर्स है तुम्हारा आइसोलेटेड, 5 हेक्टर एक आइसोलेटेड रीजन है तो वो एक क्राइटेरिया है, एंड 2 हेक्टर्स इफ इट इज अ कॉन्टिग्युअस विद द गवर्नमेंट नोटिफाइड फॉरेस्ट के साथ 2 हेक्टर है तो उसको कहा जाएगा एज फॉरेस्ट एरिया. यहाँ पे एक सेट भी किया है कैनपी. कैनपी इज लाइक द कवर. ओके, सो कवर जो है 40% से ज्यादा होना चाहिए तो ही उसको फॉरेस्ट कहलाएंगे, अदरवाइज दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द हरियाणा's गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन. कुछ चीजों को एक्सक्लूड भी किया है, यानी कि रोड के बाजू में जो फॉरेस्ट है इसको उन्होंने कैंसिल किया है. कनाल्स, रेलवे, प्लांटेशंस, लीनियर कॉम्पैक्ट प्लांटेशंस, एग्रोफॉरेस्ट्री प्लांटेशंस, ऑल दिस दे सेड नहीं, ये फॉरेस्ट में नहीं आता. तो ये किसका डेफिनेशन है? ये हरियाणा गवर्नमेंट का definition है of the forest. Now we will see what are the impacts or the concerns regarding this. Firstly, यहाँ पे जो सर्वेज हम कर रहे हैं ये थोड़ा डिले हो जाएगा, okay, because there is no proper definition of forest, so that will be an impact. Second, high threshold risk. For example, if you talk about Haryana, Rajasthan, here we have the Aravalli ranges, right? Aravalli hills. तो Aravalli hills जो है, which is on dry rocky terrain, है ना, shrub forest है ये. They have often less than 40% canopy, so they may be excluded because according to Haryana's definition, जो 40% से कम है उसको फॉरेस्ट में गिना नहीं जाएगा. सो ये एक प्रॉब्लम होगा, राइट. थ्रेशोल्ड इनका बहुत ज्यादा है, ये एक प्रॉब्लम है. सेकेंड, मेनी स्मॉल बट इकोलॉजिकली क्रिटिकल पैचेस, जैसे कि अगर 2 हेक्टर से अगर हम देखें कम है तो ये भी इग्नोर किया जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या बोला है? 2 हेक्टर्स एंड 5 हेक्टर्स. 5 हेक्टर्स इन केस ऑफ अगर वो आइसोलेटेड है और 2 हेक्टर अगर कंटिग्युअस है. सो ये बोला है कि तुम्हारा जो थ्रेशोल्ड दिया तुमने 2 हेक्टर्स, दैट इज टू हाई. ठीक है, सो दैट इज दिस केस. नाउ फर्दर इन्होंने वायलेट भी किया है गोदवर्मन का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1996 का, जहां पे बोलते हैं कि ऑल नेचुरल फॉरेस्ट रिगार्डलेस की साइज क्या है, डेंसिटी क्या है, कोई बात नहीं, फॉरेस्ट फॉरेस्ट होता है, राइट. सो दैट इज ऑल्सो अगेन गोइंग अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. फर्दर डेवलपमेंट रिस्क होगा, बिकॉज नाउ यू विल सी अलग अलग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है, आराम से एक माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करेगा, कोई एक बिल्डिंग स्टार्ट करेगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे. सो दिस विल अगेन लीड टू प्रॉब्लम्स, दिस विल लीड टू मोर डेवलपमेंट स्पेशली इन इकोलॉजिकल एरियाज. फर्दर यहाँ पे एक्सपर्ट यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेशली एनवायरमेंटलिस्ट लाइक चेतन अग्रवाल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ये जो कैनोपी, ये जो थ्रेशोल्ड्स दिया है ये अनरीजनेबली बहुत तुमने हाई किया है. ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कहते हैं कि तुम्हारा जो डेफिनेशन है वो ठीक नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन,
ये है कि नाउ हरियाणा विल टेक्निकली कंप्लाई विद दिस पर्टिकुलर 2020 ऑर्डर, बिकॉज उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि तुम डेफिनेशन दे दो, राइट, बट द डेफिनेशन इज बीइंग कंटेस्टेड बिकॉज ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है, थ्रेशोल्ड्स बहुत हाई है. सो देयर वाज गोइंग टू बी अनदर हियरिंग इन September 9, 2025 एंड देन वी विल सी व्हाट विल हैपन विद रिगार्ड टू दिस डेफिनेशन. अभी तक के लिए ये हाई कोर्ट का ऑर्डर, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पाल के इन्होंने अपना डेफिनेशन दे दिया है. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है ऑनलाइन गेमिंग. तो कल के दिन हमने देखा था लोकसभा had passed the online gaming bill and now we see even Rajya Sabha has said okay, go ahead with the promotion and regulation of online gaming bill 2025. So we're going to see this once again. Objective क्या है? Objective यही है कि हम एक legal framework provide करें ताकि जो online games हैं, okay, Dream 11, Winzo, सुना ही होगा आपने, तो ये गेम्स को अभी क्या करेंगे, इसको रेगुलेट किया जाएगा. ओके, वी आर गोइंग टू क्लैम्प डाउन ऑन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स बिकॉज दिस विल हैव नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल हार्म कंसर्न्स. इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं ये हम अभी देखेंगे. सो What was done according to this bill? What are the major provisions? कि बैन किया जाएगा पहले रियल मनी ऑनलाइन गेम्स. ओके, फर्दर कितना है बैन? यहाँ पे 3 साल का जेल या 1 करोड़ का जुर्माना होगा इफ यू वायलेट इट. फर्दर जो प्रमोट करते हैं इसको, सेलिब्रिटीज करते हैं ना, तो इनको भी अब देखोगे कि 2 साल का जेल हो सकता है, 50 लाख का जुर्माना हो सकता है. फर्दर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, they are barred from enabling such transactions. They cannot. So UPI सब जो apps होते हैं that allow that, okay, that also has been said कि तुम अभी ये सब डीलिंग्स नहीं कर सकते हो. So what is the definition of online money games? ये वाइडन किया है लेकिन ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे इससे हटा दिया है. सो ई स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ऐसा हमको पता चल रहा है, राइट. सो इट्स क्रिएटिंग ऑल्सो अ सेंट्रल अथॉरिटी ताकि वो रेगुलेट कर पाए, रजिस्टर कर पाए, प्रमोट कर पाए एनी अदर सच ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स. ओके, सो वील हैव अ अथॉरिटी. इफ एंड ऑल यू वांट टू रजिस्टर, यू वांट टू मेक अ कंपनी विद रिगार्ड टू ई स्पोर्ट्स, तुमको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. फर्दर सर्च एंड अरेस्ट वारंट, ओके, अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है, स्पेशली जो भी आपके ऑफिसेज हैं और सब, ये वो कर सकती है. सो दिस इज टू मेनली रेगुलेट द ऑनलाइन गेमिंग. नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स एसोसिएटेड दिस? व्हाई हैज गवर्नमेंट डन दिस? व्हाई हैज इट पास द बिल? इसीलिए बिकॉज फर्स्टली नेशनल सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग जैसी चीजें यहाँ पे होती है ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू, है ना. ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना, दैट इज व्हाट हैपेंस इन दी सच एप्स. फर्दर एक तरह से एडिक्शन होता है ना. फर्दर फाइनेंशियल रूल, मतलब तुम बहुत पैसे खर्च करते हो एंड देन योर फैमिली is left with zero money. So that is the problem कि families get destroyed because of such games, because of this addiction that they have. ठीक है, तो ये सब बंद करो, ये बोला है. Further गवर्नमेंट को भी लॉसेस होंगे. दिस सेड कि फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, 15 से 20 करोड़ जीएसटी हिट हो सकता है. बट इट इज सेइंग कि हमारे जो कंसर्न ज्यादा है तो हमको इससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. अर्लियर इफ यू सी इन 2023 गवर्नमेंट ने बोला प्रमोट करो, प्रो इंडस्ट्री था, ठीक है, वो बोला कि अरे आराम से मेक मोर ऑनलाइन गेम्स, इट्स गुड, पैसे आ रहे हैं. बट अभी एक रिवर्सल दिख रहा है हमको गवर्नमेंट के स्टैंड में. पहले था प्रमोशन, अभी देख रहे हैं हम प्रोहिबिशन, राइट. सो इससे इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट अगर हम देखें, अलग अलग स्टैंड देखें, as we said कि ये मार्केट बहुत ज्यादा है, 9 बिलियन मार्केट by 2029 it is promising 2 लाख. So again this data is not important, just to show you कि इतना इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि इतना ये कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमी को. सो इंडस्ट्री का क्या रिस्पॉन्स है? बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे अपोज कर रहे हैं कि ये बैन मत करो ऑनलाइन गेमिंग का, बिकॉज इट्स अ लेजिटिमेट इंडस्ट्री विच इज ऑल्सो हैपनिंग अब्रॉड एज वेल, जिसके कारण हम देखते हैं यर दे विल यूज अदर सोर्सेस. अगर यहां से नहीं तो दूसरे सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, है ना. तो ये कह रहे हैं कि यू डोंट बैन दिस, ब्लैंकेट बैन मत करो. फर्दर गवर्नमेंट का स्टैंड है कि नहीं, बहुत सारे अनलॉफुल एक्टिविटीज यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक हार्म हो रहा है, एडिक्शन और सब हो रहा है, तो इसको बैन करना जरूरी है. सो दिस इज द बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी.
लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हम देख रहे हैं विद रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे एक इश्यू है, इश्यू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, दैट जो डिले करते हैं गवर्नर्स इन गिविंग असेंट, राइट, तो वेदर जुडिशरी कैन इंटरवीन और इट कांट, ये इश्यू है। Now, let me give you a back story. यहाँ पे हमने देखा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया था। So we have the law making body which is the state legislative assembly. तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने ऐसे कुछ 10 बिल्स पास किए थे, बट उनका जो गवर्नर है TN रवि, इन्होंने इनको पास नहीं किया था, उन्होंने साइड पे रखा था। Now, उनके जो MLAs हैं, लोगों ने वोट किए हैं, दिस इज इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट, वेयरएज गवर्नर को क्या लोग अपॉइंट करते हैं? नहीं, ये तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सो डोंट यू थिंक पीपल का जो से है इसको ये अंडरमाइन कर रहा है, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहा है। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया था। सो वी हैव BR गवाई, ये कहते हैं कि इवन इफ सुप्रीम कोर्ट शुड सिट पावरलेस व्हाइल गवर्नर्स की बिल्स पेंडिंग फॉर इयर्स, राइट, ये क्या कर सकती हैं हम, फर्दर रिफर टू तमिलनाडु गवर्नर होल्डिंग क्रूशियल बिल्स फॉर 4 years विदाउट, कि 4 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया था, राइट। फर्दर एम्फसाइज कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू बी थ्वार्टेड। इसीलिए उन्होंने यहां पे बोला, कुछ टाइमलाइंस उन्होंने सेट किए थे, राइट, कि 1 महीने के अंदर तुमको पास करना ही है, 3 महीने के अंदर विदाउट दी एड, ये सब उन्होंने बताया था। बट यहाँ पे we got opposition from the union government, and union government का ये stand है, and इससे कौन है? That's Solicitor General तुषार मेहता। He is saying कि यहाँ पे जो time limit impose किया था by the Supreme Court, ये encourage कर रहा है on the law making। असल में अगर तुम timelines या guidelines देना पड़ता है, that will be done by the lawmakers, that is the parliament। Supreme Court का काम क्या है? Is it law making? No। Then why are you doing it? ये union government का stand है। फर्दर ये कह रहे हैं कि द इनएक्शन जो है इट इज सीन एज इन द पॉलिटिकल स्फीयर, नॉट इन द जुडिशरी, यानी ये जुडिशरी को नहीं देखना चाहिए, इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के पास स्यू जेनरिस का मतलब है विद रिगार्ड टू सम वन ऑफ इट्स काइंड, यूनिक, ओके, इनके पास कुछ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है एंड दे आर नॉट बाउंड बाय टाइम, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा टाइम लिया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते। सो यू कैन नॉट माइक्रो मैनेज गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। तुम्हारा काम है लॉज को देखना है, अपहोल्ड करना है, यस, बट नॉट लॉ मेकिंग आपका काम नहीं है। सो दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट या सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता's व्यू पॉइंट। Let's proceed to the next article. अगला article है silence will only embolden the bully. Now this is said by the Chinese ambassador to India, Xu Fenghong. Okay, now let's understand why are we discussing this also, some important facts. तो Chinese ambassador to India जिनका नाम है Xu Fenghong, ये कहता है कि चाइना जो है एक स्टैंड लेगी विद इंडिया टू अपहोल्ड WTO। ना why do you think China is being good friends with India now? Okay, हमने always देखा है कि चाइना इंडिया okay not that great, but why so? Why now to be कि हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं? That's because US जो है चाइना पे भी टैरिफ्स लगाए, there was a trade war between US and China. On the other hand, we also see US ने भी 50% टैरिफ लगाए थे इंडिया के गुड्स पे, 25% पेनल्टी टैरिफ्स बिकॉज वी वर ऑल्सो इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल। तो हम देखते हैं कि इसकी वजह से चाइना इज साइडिंग विद इंडिया अगेंस्ट USA। ओके, सो इट इज सेइंग कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने यूएस को एक बुली कहा है कि वो डिसरप्ट करता है मल्टीलैटरल सिस्टम विद टैरिफ वॉर्स, ये टैरिफ वॉर क्रिएट कर रहा है यूएस, ये चाइना का स्टैंड है। सो चाइना इज साइडिंग विद इंडिया अगेंस्ट यूएसए। नाउ ये इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है कि अभी SCO समिट होगा। SCO समिट क्या है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो समिट है सितंबर 1 में होगा तियानजिन में, एंड दैट वाज द होस्ट दिस ईयर इज चाइना। तो ये चाइना में है तियानजिन, एंड वी सी दैट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ही विल बी अटेंडिंग दिस SCO समिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 25th समिट है
Okay, we've already discussed this. 25th summit है 2025 में हो रहा है ये. So that is why this can be asked in the exam. Okay, so keep a check with regard to what will happen in this particular summit. Apart from Modi ji, we also have Vladimir Putin, lot of Central Asian, Pakistan, Iran, Belarus. ये leaders भी participate करेंगे. आपका यहाँ पे एक question है कि SCO का headquarters क्या है, ये आप मुझे comment section से में बता दीजिएगा. Proceeding to that, China India के relations की बात करें, we see that they have improved especially during Kazan 2024 में summit. कजान में क्या हुआ था? We had the BRICS summit last year. ब्रिक्स का समिट लास्ट ईयर दैट इज 2024 में हुआ था. दैट इज वेयर इज कजान? कजान इज इन रशिया. बट इस साल का जो समिट है ब्रिक्स का 2025 में, दैट इज हैपनिंग इन ब्राजील. दैट हैपेंड इन ब्राजील. ओके, सो ये आपको याद रखना. सो बैक देन दे हैड अ मीटिंग विद द काउंटर पार्ट ऑफ चाइना. यहाँ पे वी ऑल्सो सी वीजाज बहुत इशू किए हैं, बहुत एंगेजमेंट हुआ है. जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये भी रीओपन किया है. ट्रेड की बात करें, दे हैव क्रॉस टू 75 बिलियन. सो वी सी अ पॉजिटिव चेंज इन चाइना इंडिया रिलेशंस. फर्दर बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, एंड चाइना का जो फाइनेंस मिनिस्टर है दैट्स वांग ई. ओके, इन्होंने यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है ये, इन्होंने यहाँ पे 10 पॉइंट कंसेंसस रीच किया है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज. सो दिस अगेन इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया चाइना यहाँ पे साथ में आ रहे हैं टू ऑल्सो वर्क ऑन मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज. व्हाट इज द अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट? दिस इज एन इंटरिम अग्रीमेंट दैट इज हैपेंड बिफोर अ फाइनल. फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के पहले जो इंटरिम अग्रीमेंट होता है वो होता है अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट. तो ये भी ये वर्क कर रहे हैं एंड दे आर कोऑपरेटिंग among each other. Now this is with regard to the article. Let's proceed to Sri Lanka's Tamil flagging militarism. Let's understand what is the article about. तो आप देख रहे हो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, that is in the north and east, तमिल मेजोरिटी रीजन्स है. ये श्रीलंका है, श्रीलंका के नॉर्थ एंड ईस्ट में तमिल मेजोरिटी रीजन्स है. नाउ दीज वर द बैटल जोन्स. ओके, बिकॉज वी नो सिविल वॉर हुआ था, decades long civil war between the government and LTTE, which is the Liberation Tiger of Tamil Eelam. तो 2009 में वॉर तो एंड हुआ, बट अभी भी आप देखते हो कि बहुत सारी मिलिट्री इस रीजन पे तैनात है, बहुत ज्यादा मिलिट्री इस रीजन में तैनात है. सो अगस्त 18 में क्या हुआ था? देयर वाज अ हड़ताल, देयर वाज अ स्ट्राइक व्हिच वाज अनाउंस्ड बाय द ITAK, व्हिच इज द इलंकाई तमिल अरासू कच्ची. इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, तमिल पॉलिटिकल पार्टी, एंड इन्होंने स्ट्राइक या हड़ताल इशू किया था. नाउ व्हाई डिड दे डू दैट? देयर वाज अ ट्रिगर इवेंट था कि एक 32-year-old बॉय, ओके, तमिल बॉय, इनका नाम ये है, ही वाज किल्ड बाय the army soldiers. Okay, and that led to having asked the political party said कि आपको एक proper investigation करना पड़ेगा कि why he was killed, what was the reason for the same. तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या बोला? We see that they arrested the 3 soldiers that were involved in this. और उनके जो प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमार दिसनायके. इन्होंने बोला है कि हम मिलिट्री जो है ये डाउनसाइज करेंगे, कम करेंगे बाय 2030. बट अभी भी देख रहे हो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेंडिंग कर रहा है श्रीलंका की गवर्नमेंट. इट इज स्टिल ह्यूज, अप टू 442 बिलियंस इन 2024. इतना वो ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, मोर देन व्हाट इट इज स्पेंडिंग इन एजुकेशन, स्पेंडिंग इन मिलिट्री. ओके, तो ये एक स्टैंड दिख रहा है गवर्नमेंट का, ऑफ द श्रीलंकन गवर्नमेंट. इट स्पेंड्स 2% ऑफ इट्स GDP ऑन मिलिट्री, इवन दो देयर इज नो मेजर एक्सेप्ट, उनके नेबर्स ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंडिया, है ना. अदरवाइज दे डोंट हैव लैंड नेबर्स. So even despite of that वो spend कर रहा है, and that is why it is criticized. Now concerns ये है कि ये accuse कर रहा है military को of drug problems. That's the Tamil politicians कह रहे हैं कि drug problem create करते हैं और ये youth, ये community को weaken करना चाहते हैं. Now United Nations Human Rights Office ने कहा है Sri Lanka has done little, it's not done much in terms of security. Further military presence और सब जो है they are still very strong, ये कम होना चाहिए. Further, reducing military role, ये कहाँ है? Especially in the civilian affairs. So this is what the United Nations Human Rights Office has also said. Proceeding to the next article, which is NATO. क्या है NATO? That is the National Organ and Tissue Transplant
ऑर्गेनाइजेशन नोटो, तो इसने अभी रिसेंटली एक एडवाइजरी इशू किया है. व्हाट इज द एडवाइजरी? इन्होंने कहा है कि जो विमेन पेशेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं ऑफ द डिजीज डोनर्स, इनको प्रायोरिटी मिलना चाहिए फॉर द ऑर्गन एलोकेशन. ओके, सो अगर विमेन है एज वेल एज कोई रिलेटिव्स है उनकी जो अभी डिजीज हुई है, उनको प्रायोरिटी दो टू गेट द ऑर्गन. State advised to create permanent transplant coordination post. Then there will be trauma centers जो develop किए जाएंगे as organ retrieval या receival centers. Further train करें emergency responders या ambulance staff को to identify कोई potential disease donors हो सकते हैं. तो उन्होंने बोला उनको भी train करो ताकि we are increasing the organ transplantation procedures in India. So further let us see why is India saying women को क्यों इतना organs देना चाहिए. Okay, all the male watching in this video will be questioning कि why females should get more organs. Let us understand what is the data for the same. तो यहाँ पे हम देखते हैं gender disparity in organ donation. हम देखते हैं कि 63% of the donors are women. Okay, 63 मतलब अगर 56,000 ऐसे पेशेंट्स हैं, 36 are done by women only. The other donors, but कौन इनको रिसीव करता है? 69% are men who receive it, organ recipients. तो अगर आप देखते हैं कि women donate ज्यादा करती है but men receive ज्यादा करते हैं, देखो कितना अत्याचार हो रहा है. ठीक है. फर्दर लीगल फ्रेमवर्क क्या है? अंडर दिस द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट ऑफ 1994, दिस हैज बीन अमेंडेड इन 2011 टू इंक्लूड टिश्यू एज वेल. सो दिस इज ऑर्गन, नॉट ओनली ऑर्गन्स बट ऑल्सो इंक्लूड्स टिश्यूज. दे ऑल्सो आर प्रोहिबिटिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑर्गन्स. ओके, ये आप बाय सेल ऐसे ब्लैक मार्केट और सब में नहीं कर सकते. पकड़े जाओगे तो फाइन होगा, पेनल्टीज होगा. ओके, दैट वी सी. इसके अंडर there is an organization called as NOTO, which we saw as National Organ Transplant Organ and Tissue Transplantation Organization, and this is the national body which is overseeing the organ donation. It comes under the Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है, तो ये legal framework है where it talks about who manages this sector. अगर हम स्टेटस देखें, WHO यानी कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 1,30,000 से ज्यादा ट्रांसप्लांट पर ईयर एस्टिमेट करता है, बट ओनली 10% आर मीटिंग. बाकी का क्या? इंडिया में भी देखते हैं 1.5 lakh पेशेंट्स आर देयर दैट हैव kidney diseases, 1.8, but how many are getting the transplants? Only 12,000, which is a very small number. So यहाँ पे अगर आप देखते हैं, one donor can save up to 8 lives, right? And tissues और सब तो बाद में. Organs की बात करें, 8 lives बचा सकता है. But the challenges that remain still is with regard to awareness नहीं है लोगों में, cultural myths है. There's also some sort of family hesitation to give the organs of their daughter or husband, wife and so on. So ये भी एक hesitation होता है. Further, modern techniques नहीं है, awareness gap limits हैं, जिसके कारण this is led to limited organ transplantation. So this is with regard to the organ transplantation, and this is all with regard to today's discussion of the Daily News Analysis. Thank you so much for watching.